Hello everyone, my name is Shah Manawat and I welcome all of you to the series of Basics of Algebra. This is lecture number 3 and in this lecture we are going to discuss the factor theorem. Factor theorem which is also called the remainder theorem. So let's come to the screen and understand what is factor theorem. Okay, so factor theorem is nothing but suppose if you have uh, any expression such as x minus a. And if we count this to be a factor of any given polynomial, if we say that this is factor of given polynomial, we can only say if we substitute x is equal to a in the polynomial, and if the polynomial gives you 0, then we can say x minus a is a factor of that polynomial. बहुत confusing लग रहा है ना? Don't worry. मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ. अच्छा यहाँ पे और एक पॉइंट है, इफ द वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज नॉट अ फैक्टर. तो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं. नाउ आप ये समझो फैक्टर का मतलब क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द फैक्टर. Factor, let's say, if we take example of 12, let's say 12. Up 12 has 3 into 4. 12 is what? 3 into 4. What does it mean? 3 and 4 both are factors of 12. मतलब क्या हुआ? If you divide 12 by 3, you have 3 fours are 12 and the remainder is 0. Okay, this is the meaning of factor. So factor is what? I hope you understood the meaning of the factor. Factor meaning what? A number which can divide the given number perfectly. That means the remainder should be 0. Okay, so this is factor. Now, how does it help you to understand factor theorem? अभी हम लोग एक example लेते हैं. Let's take this example. We have an expression that is x plus 2, and we need to see whether it is a factor of x cube minus 3x square plus 28. For the moment, let's forget about the factor theorem and let's see whether if we divide this expression, if we divide this polynomial with x plus 2, are we going to get the remainder as 0? If we get remainder as 0, then it is definitely a factor. X plus 2 is a factor of this polynomial. Easy है? Easy है? फिर से चले? पुराना example. We can say 3 is factor of 12 only when we divide 12 by 3, okay? It should leave remainder 0. Then it is factor. You can say factor और factor का दूसरा नाम एक और है, उसको बोलते हैं हम लोग divisor. Okay? It is divisor of, so 3 is divisor of 12, 3 is factor of 12. हम लोग दोनों बोल सकते हैं. फिलहाल हम लोग factor पे फोकस करेंगे. Now चेक करते हैं कि x plus 2 is it a factor of this given polynomial? कैसे चेक करेंगे? डिवाइड करके. ओके, हम लोग फैक्टर थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, बट फिलहाल फैक्टर थ्योरम को होल्ड पे रखते हैं. पहले डिवीजन सीखो. देखो, ये हम लोग कहाँ पे हैं? वी आर इन कॉन्सेप्ट बिल्डर लेक्चर्स. इन कॉन्सेप्ट बिल्डर लेक्चर्स इट इज आवर ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग जितना चीजों को डिटेल में जाके समझे उतना अच्छा होगा. ओके, डिटेल में जाके समझे तो शॉर्टकट अप्लाई करने में मजा आएगा. एंड मोर देन दैट यू विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग शॉर्टकट्स कि ये एक्चुअली शॉर्टकट है. तो पहले हम लोग समझते हैं कि डिवाइड कैसे करेंगे. ओके, सो यू हैव 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 20. अब डिवाइड कैसे करते हैं? ये दिस आई एम श्योर दिस इज the first question which we are discussing in the entire course where we are learning the division of algebraic expressions. Okay, polynomials. तो समझो ध्यान से. अच्छा, तो ये 2x अब डिवाइड के लिए लिखते हैं कैसे एक्सप्रेशन? हम लोग वो लिख लेते हैं. तो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 28 यहाँ पे है हमारे पास. एंड वी आर डिवाइडिंग दिस बाय व्हाट? x प्लस 2. ठीक है यहाँ तक? यहाँ तक ठीक है. अच्छा, अभी एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा और स्पेस यहाँ पे लेते हैं. एंड लेट मी ड्रॉ this space here, and here we are going to write what? Quotient, right? So x plus 2 is a divisor and 2x cube minus 3x square plus 28 is a dividend. ना तो हमें पता होगा. अच्छा, आपको डिवाइड कैसे करना है? ध्यान से समझना, पे अटेंशन हियर. You take the first expression of the dividend and first expression, sorry, you take the first term of the dividend and first term of the divisor. ठीक है, इसको साइड में लिख लो. कैसे लिखोगे? 2x cube and then divisor in denominator x.
If you divide 2x cube by x, what will you get as a quotient here? You will get 2x square. ठीक है, ध्यान से समझना। यू विल अंडरस्टैंड व्हाई, व्हेन, वेयर, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड। पहले आप इसको फॉलो करो। तो यहाँ पे आपके पास क्या मिला? 2x square. So now you are going to write 2x square here, okay, at the place of quotient. Now this 2x square, this step is important. This step is important. ध्यान से समझो। Now I'm going to multiply this 2x square with this entire divisor. Okay, ये पूरा x plus 2 is a divisor, right? तो 2x square को हम लोग x plus 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो कितना आएगा बताओ? मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? You will have, sorry, you will have 2x square multiplied by x plus 2. कैसा आएगा? You will have 2x cube plus 4x square. आएगा ऐसा, right? Now, do you remember when you divide the numbers, what do? You have 3 4s are 12 और उसके बाद आप क्या करते हो? Subtract, right? So here also you have what? 2x cube plus 4x square, and then what we are going to do with this? We are going to subtract. So when you subtract the expression or polynomial, you change the sign. ये पता है हमें? You change the sign, right? So when you change the sign, you have what? 2x cube minus 2x cube, ये तो आपका 0 हो जाएगा, and minus 3x square minus 4x square will be minus of 7x square. यहाँ तक ठीक है? बोलो ठीक है यहाँ तक? या होना चाहिए ठीक। देखो क्या किया हम लोगों ने? First thing, we have taken the first term of the dividend and first term of the divisor, और यहाँ पे हमने उसको डिवाइड करके देखा कि क्वोशिएंट क्या होना चाहिए। पहला क्वेश्चन का पहला टर्म क्या होना चाहिए? सो वी गॉट 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने 2x स्क्वायर लिख दिया, एंड देन वी मल्टीप्लाई दिस विथ x प्लस 2, एंड वी हैव रिटन दिस हियर। स्टोरी समझ में आया? पूरा पूरा स्टोरी समझ में आया? गुड, ओके। नाउ we take this plus 28 as it is down, so you have got plus 28 here. यहाँ तक ठीक है? ठीक है, यहाँ तक देखो ऐसे ही करते हैं हम लोग। सपोज had this been 126, तो हम लोग क्या करते हैं? 3 4s are 12 और ऊपर से हम लोग 6 नोट करते हैं यहाँ पे, राइट? So similarly, we have plus 28 here. We are writing plus 28 here. All right. Now, sorry. ये वाला कट करना। Sorry. Okay. Continue. Continue. Now, next we are going to take the first term of this expression, and here first term here. So you got what? Minus 7x square, and then you divide by the first term of the divisor. तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? -7x। आ रहा है समझ में? बोलो, आ रहा है समझ में? Now this -7x is the next term of the quotient. So this is -7x here. अब आप क्या करोगे? -7x को पूरे एक्सप्रेशन से, पूरे डिवाइजर के एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करोगे। So -7x into x is going to be minus, oh, change the color. Let's keep it blue. -7x square and minus 14x होगा ऐसा? आप क्या करोगे? Now you have to subtract. So for subtraction, you need to change the sign. So minus will become plus, minus will become plus. Now, next is -7x square को आप -7x square से ऐड करोगे। -7x square plus 7x square will be 0, plus 28 and plus 14x, इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो अलग-अलग लिख दो उसको। 14x as it is लिखो, plus 28। बात समझ में आ रही है? You can't add 14x with 28. 14x has variable with it. 28 is a pure constant. हम लोग ऐड नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली हम लोग उसको एज एक्सप्रेशन में ऐसे लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके, व्हाट आर वी लर्निंग नाउ? वी आर लर्निंग हाउ टू डिवाइड द पॉलिनोमियल्स। सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पे अटेंशन। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आप लोग बताओ, क्या होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए, नाउ टेक द फर्स्ट टर्म ऑफ द दिस एक्सप्रेशन, फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर्स एक्सप्रेशन। नाउ 14x को अगर हम लोग x से डिवाइड करेंगे, व्हाट इज दैट वी आर गोइंग टू गेट? 14 प्लस का 14, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस का 14 है, प्लस का 14, तो ये भी प्लस का 14। सो हियर क्वोशिएंट पे भी क्या होगा? प्लस का 14। यहाँ तक ठीक है?
ठीक है यहाँ तक बताओ। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? 14 वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द एंटायर एक्सप्रेशन ऑफ द डिवाइजर। व्हाट डू वी गेट हियर? हियर विल गेट 14x। कलर चेंज करो क्या? चलो लेट्स कीप इट ब्लू, कीप इट ब्लू। सो हियर यू गॉट 14x plus 28 होगा ऐसा? 14 into x is 14x, 14 into 2 is 28. Now again if we have to change, if you have to subtract, we got to change the sign. So my plus will become minus, plus will become minus, and then you subtract. So my plus 14x minus 14x will be 0, plus 28 minus 28 will be 0 again. So what are you getting remainder as? You're getting remainder as what? 0. अच्छा, आपको सबको डिवीजन तो याद है ना यार? डिवीजन याद है ना? एक बात बताओ, ये क्या हुआ? ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये आपका क्वोशिएंट हो गया। ये क्या हो गया? दिस इज योर डिवाइजर। ये आपका डिवाइजर हो गया, राइट? आप ये वाले पार्ट को क्या बोलोगे? अ, इस पार्ट को क्या बोलोगे? इस पार्ट को आप बोलोगे डिविडेंड। ध्यान रहेगा, इस पार्ट को आप क्या बोलोगे? डिविडेंड। क्लियर है ये? ओके। अच्छा, और हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज वाली बात बता रहा हूँ मैं। और हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं जो डिविडेंड है, डिविडेंड, दैट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बोलते हैं ऐसा, राइट? नाउ इफ आई वांट टू राइट ये जो भी हमने तामझाम किया है, इफ आई वांट टू राइट दिस इन फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, देन हाउ आर वी गोइंग टू राइट? हम लोग सबसे पहले लिखेंगे डिविडेंड। क्या है डिविडेंड? बताओ। 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। सो डिविडेंड क्या है हमारा? डिविडेंड क्या है? डिविडेंड क्या है? 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 28, दैट इज इक्वल टू डिवाइजर। डिवाइजर क्या है? x माइनस 2, x माइनस 2 ही है ना? x प्लस 2, चलो x प्लस 2, एंड देन क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या है? क्वोशिएंट कितना है हमारा? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, एंड रिमाइंडर इज व्हाट? 0। रिमाइंडर क्या है यहाँ पे? 0। क्लियर है? ठीक है। अब आप एक बात बताओ यार, थोड़ा लॉजिक लगा के मुझे बताओ, आप लोग खुद से बताओ। अगर मैंने x प्लस 2 को 0 रखा, सो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, राइट? रिमाइंडर तो 0 है ही। सो if I substitute x plus 2 equal to 0, I'm going to get this expression. Which expression? The dividend expression, which is 2x cube minus 3x square plus 28 is also equal to 0. अब ये इतना तामझाम मैंने आपको इसलिए बताया था कि आप समझ पाओ कि अगर किसी एक्सप्रेशन का कोई फैक्टर है, डिवाइजर है, प्योर डिवाइजर है, जहाँ पर रिमाइंडर, फैक्टर मतलब रिमाइंडर 0 मिलने वाला है। So if you substitute this factor equal to 0, then this polynomial, divid sorry, cut. Then this polynomial, the dividend, is also going to be equal to 0. यही रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। ओके, अलजेब्रा में हम लोग फैक्टर थ्योरम इसी को बोलते हैं। या तो आपने क्या किया? यू हैव चेक वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो आप यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया तो आप बोलोगे यस, यस। थोड़ा और बड़ा लिखते हैं, चलो और बड़ा लिखते हैं, यस, यस, इट इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। पर ये तो हमने बहुत लंबा किया। अच्छा, शॉर्ट में हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। अभी आपको फैक्टर थ्योरम का बेस समझ में आ रहा है? इफ यू पुट एनी फैक्टर, इफ द फैक्टर इज इक्वल टू 0, द एक्सप्रेशन इज आल्सो गोइंग टू बी 0। ओके, अब आप अप्लाई कैसे करोगे उस चीज को समझो। So let me take this again. Let me take this again. Let me take this opportunity again to explain the same thing to you with रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। समझो ध्यान से। तो अभी यहाँ पे क्या है? यहाँ से क्वेश्चन, अब देखो यार, एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है। डोंट, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम इन राइटिंग द सेम थिंग। एक्स वी हैव टू प्रूव वेदर, लिख लेते हैं चलो। एक्स प्लस 2 इज, वी हैव टू चेक, इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब minus 3x square plus 28. We're gonna check this. Okay. So कैसे करोगे?
अगर ये इक्वल टू 0 है, तो उस वक़्त ये भी इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट? इफ x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, देन दिस डिविडेंड शुड आल्सो बी इक्वल टू 0. सो ये 0 कब होगा? x प्लस 2 इज़ 0 फॉर x इक्वल टू -2, या 2 उधर लेके जाओगे तो x इक्वल टू -2, राइट? सो फॉर x इज़ इक्वल टू -2, इवन दिस एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल टू 0, राइट? सो चलो सब देखते हैं, ऐसा हो रहा है क्या? We need to substitute x is equal to -2. Let's substitute. So what do you have here? You got 2 and x is equal to -2 रखा तो -2 cube, and then you got minus here, then you got 3 x फिर से -2 हुआ, you got to square that and plus 28. Okay. Now 2, अच्छा, -2 cube is what? -8. Okay. This -2 square is what? +4. Okay. This is 28. ओके, ये इतना कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो, बट लेट मी स्टिल हेल्प यू आउट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज़ दिस इज़ ऑल बिगिनिंग क्लासेस, राइट? दिस इज़ ऑल फॉर बिगिनर्स, सो इवन इफ यू डोंट हैव मैथ्स बैकग्राउंड, आपको समझ में आना चाहिए, तो इसलिए मैं सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ। ओके, ठीक है। सो -16 -28 -16 -12 इज़ इक्वल टू -28, और ये आपका +20, तो क्या ये 0 आया? क्या ये 0 आया? आप बोलोगे, हाँ, ये 0 आया। हाँ, ये 0 आया। कब ये 0 आया? For x is equal to -2, this factor is also 0, and for x is equal to -2, this polynomial is also 0. So we can say yes, it is a factor of x plus 2 is factor of the given polynomial. आपको रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम अप्लाई करना आया? Did you understand how to apply the factor theorem? Let's take more example. We have more example, और example है हमारे पास. So here we got example number 2. Example number 2 is check if x minus 3 is a factor of this. ठीक है. क्या करोगे आप? अभी डिवीजन वाला नहीं, डिवीजन वाला होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करके देखो. डिवीजन मेथड आना चाहिए, डिवीजन मेथड आना चाहिए, पॉलिनोमियल का डिवीजन मेथड आना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आप ट्राई करो उससे. मैं आपको यहाँ पे फैक्टर थ्योरम के बारे में बताता हूँ थोड़ा. Let me solve this question for you for with factor theorem. So we can say this. So we can say this x minus 3 is a factor. ये चेक करना है, कैसे चेक करेंगे? पहले इसको इक्वल टू 0 रख दो. So we'll say if x minus 3 equal to 0, so this is equal to 0 for x is equal to 3. Okay. That means for x is equal to 3, for x is equal to 3, even this polynomial should give you 0. So substitute करके देखते हैं. Let's substitute this. So you got what? 3 cube. Direct रख दे. I hope you don't want me to write this expression again. चलेगा ना? Okay. So you have x equal to 3. So 3 cube plus 4 into 3 square minus 11 into 3 minus 30. ठीक है. So 3 cube is what? 27. This is 4 into 3 square is 9. -33, -33, -30. बताओ ये कितना हुआ? दिस इज व्हाट? 36. ये कितना है? 27. 27 प्लस 36 कितना आ जाएगा? दिस इज व्हाट? आप इसको ऐड करोगे कितना बनेगा? दिस इज 63. अच्छा, -33 -30 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? ऐड ही करेंगे ना. सेम साइन गेट एडेड, रिमेंबर दैट, सेम साइन एडेड. तो मैं -33 -30 को ऐड कर रहा हूँ. ओके, सेम साइन ऐड, डिफरेंट साइन subtract. Okay, so this will be -63. Is this equal to 0? क्या ये equal to 0 आया है? आप क्या बोलोगे? हाँ, ये equal to 0 आया है. Yes, this is equal to 0. Yes, this is equal to 0. It means what? For x is equal to 3. अच्छा, ये x equal to 3 आया कहाँ से? हमने ये जो फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन है x माइनस 3, इसको हमने इक्वल टू 0 रखा, वहां से x का वैल्यू 0 आया. तो हमने रिवर्स क्या बोला? फॉर x इक्वल टू 3, x minus 3 is also equal to 0. That means for x equal to 3, this expression should also be equal to 0. आ रहा है, हो रहा है, ठीक चल रहा है सब? ऑल गुड? ऑल गुड? आगे देखें, एक और देखें एग्जाम्पल. लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 3. हियर गिवन द पॉलिनोमियल px, ये ऐसा आपको दिया हुआ है, कभी-कभी ऐसा एग्जाम में आ जाएगा आपको. इफ x minus 2 is a factor, then find the value of k. Oh, so this time it is given.
इट्स गिवन, आपको प्रूफ नहीं करना है। आपको हाँ, ये फैक्टर है ऐसा बोलना नहीं है, आपको ये गिवन है। दिस गिवन दैट x-2 इज़ अ फैक्टर एंड यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k हियर। तो कैसे करोगे आप? आपको तो आता ही है, ये गिवन है, दैट मीन्स इट हैज़ टू गिव यू इक्वल टू 0। अच्छा बाय द वे, ये जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, ये कैसा है? इसको आप क्या कर सकते हो? इसको ये जो एरो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पावर। ओके, सो इट मीन्स दिस इज़ 2x क्यूब, कितना गंदा हैंडराइटिंग है यार, 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 10x 10x प्लस के, सीख जाऊँगा, अच्छा हैंडराइटिंग आ जाएगा, आ जाएगा। Okay, this is given to us. Now, for if it is given that x minus 2 is a factor, तो x minus 2 को हमने 0 रखा। This is 0 for x equal to 2, कहाँ से आया? माइनस 2 को शिफ्ट किया हमने राइट हैंड साइड। That means for x is equal to 2, even this expression should be equal to 0. Substitute करके देखते हैं। So you got 2 into 2 cube minus 2 square minus 10 into, sorry, 10 into 2 here, and plus k has to be equal to 0. We don't have to prove it because it's given that x minus 2 is a factor. Clear है? Clear है ये? Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। Now 2 into 2 cube. 2 cube कितना? 8, 8 2s are what? 16 and minus 2 square is what? 4. ये आपका कितना आ गया? 20 और यहाँ पे आपका आ गया k as it is and this is equal to 0. So यहाँ से बना आपका minus 24, this is 16, तो यहाँ पे आ जाएगा -8 प्लस के इक्वल टू 0 होगा ऐसा? -24 16 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखो +4 करोगे तो 20 बनेगा, -4 करोगे तो 20 बनेगा, 24 से -4 करोगे 24 20 बनेगा। 8 का डिफरेंस होना चाहिए। सो -8 या सो के इक्वल टू व्हाट? के इक्वल टू 8। आपको इस तरह से अगर आप सोच सकते हो इस तरह से तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो कोई बात नहीं है, यू नो सब्ट्रैक्शन सो इट ईज़ी है और छोटे-छोटे नंबर है। ईज़ी नंबर है, सिंपल नंबर है। या सो k इज़ इक्वल टू 8, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ k। दिस इज़ योर आंसर। दिस इज़ योर आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो आप पूछोगे सर इसमें ऑप्शंस कहाँ हैं? अरे अभी फंडामेंटल स्टडी कर रहे हैं हम लोग, बेसिक स्टडी कर रहे हैं, अभी ऑप्शंस पे ध्यान मत दो, स्टेप्स समझो। जितना आप इसके डीप में जाओगे, आई प्रॉमिस यू आई विल शो यू लॉट ऑफ शॉर्टकट्स। बहुत सारे शॉर्टकट बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट फर्स्ट मेक योर फाउंडेशन स्ट्रांग बिकॉज़ आई एम गोइंग टू गिव यू रेफरेंस ऑफ दीज़ लॉन्ग मेथड व्हेन आई एम गोइंग टू टीच यू शॉर्टकट्स। ओके? सो दिस शुड बी ओके विथ यू। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है, अगला एग्जांपल क्या है। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस polynomial divide by x plus 1? What is the remainder? So they in a way they are saying कि हो सकता है कि ये फैक्टर नहीं हो, right? Now one way is what? You divide this entire polynomial with x plus 1, which is which is this lengthy process. हम लोग वो अवॉइड करते हैं और फिर से हम लोग थ्योरम को समझते हैं। देखो, इफ द वैल्यू इज नॉट 0 देन इट इज नॉट द फैक्टर। इफ वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, जब आप x इक्वल टू 1 a रखोगे, आप अब आपको समझ में आया होगा व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट x इक्वल टू a, बिकॉज़ व्हेन यू से x माइनस a पुट इक्वल टू 0 यू विल गेट x इक्वल टू a. So if you substitute x is equal to a and if it is not equal to 0, it is not the factor. Then but if it is not the factor, then what? Then what? फिर क्या? फिर ये कि if we put this is equal to 0, you get x, ध्यान से सुनना, x equal to -1। आप ये सब्स्टिट्यूट करते हो जब इस पॉलिनोमियल में, when you substitute x equal to -1 in this polynomial and if it is not equal to 0, then it will give you some number, some value, right? That number is going to be remainder. जब रिमाइंडर अगर आप इसको इक्वल टू अंडरस्टैंड, when you substitute x equal to -1 in this polynomial, if you get 0, that means remainder is 0. That's why it is factor. That's why this x plus 1 is a factor. But if it is not giving you 0, suppose if it is giving you 3, ओके, 0 नहीं दे रहा है, 3 दे रहा है, तो वो 3 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। समझाता हूँ मैं। पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हो क्या रहा है, ध्यान से समझना।
So x plus 1, when you want to check the remainder, you can apply the remainder theorem. That's why इसीलिए हम लोग उसको फैक्टर थ्योरम भी बोल रहे हैं और रिमाइंडर थ्योरम भी बोल रहे हैं। फैक्टर थ्योरम बिकॉज़ यू कैन सो दैट यू कैन प्रूव दैट इट इज़ अ फैक्टर, और रिमाइंडर थ्योरम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर वो फैक्टर नहीं है, तो जो बचा हुआ वैल्यू है, वही आपका रिमाइंडर होगा। आपको यकीन नहीं आता, आप डिवाइड करके देख लो। यार अभी तक तो भरोसा हो जाना चाहिए मुझ पे, हो जाना चाहिए, राइट? Okay, so let's get started. Now, the step is again same as factor theorem. X plus 1 is equal to 0 for x equal to minus 1. अब x is equal to minus 1 हम लोग इस पॉलिनॉमियल में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या आएगा देखो, you get minus 1 का क्यूब minus 2 into minus 1 का स्क्वायर plus 3 into minus 1 minus 6. आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो हम चेक कर रहे हैं ना। वी डोंट नो वेदर इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, इट्स नॉट गिवन दैट इट इज वन ऑफ द फैक्टर, राइट? तो सॉल्व करते हैं आगे। अच्छा, माइनस वन का क्यूब कितना हुआ? माइनस वन क्यूब इज माइनस वन, माइनस वन स्क्वायर इज वन, सो वन इंटू टू कितना होगा? टू ही रहेगा विथ माइनस साइन, सो इट इज माइनस टू। अच्छा, ये क्या हो गया आपका? माइनस थ्री। यहाँ पे कितना बचा? माइनस सिक्स। और सिंप्लीफाई कर लो, वन टू थ्री थ्री सिक्स 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 12 विथ माइनस साइन, सेम साइन गेट एडेड, सेम साइंस गेट एडेड। ये सारे साइन सेम, ये ऐड होंगे, तो क्या बचा आपका? माइनस 12। इज इट इक्वल टू 0? नहीं। समझना इसको, पे अटेंशन हियर। ये 0 नहीं है, नहीं है ना? तो ये जो भी वैल्यू आपका आया है, यही आपका रिमाइंडर भी होगा, यही आपका रिमाइंडर भी होगा। क्लियर है यहाँ? अगर 0 होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर। अगर 0 नहीं आ रहा है तो x प्लस 1 इज़ नॉट द फैक्टर। It also gives you one more conclusion, one more conclusion ही बोलना चाहिए। Yeah, one more conclusion that if it is not equal to 0, then whatever number you get is the remainder when the polynomial divide by this divisor. Okay? ठीक है यहाँ तक? Yeah, pause the video, try to understand this. For first timers, for beginners, थोड़ा लग सकता है टाइम समझने के लिए, व्हिच इज़ टोटली फाइन। आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बिल्कुल भी रश मत करो। इफ यू वांट टू क्रैक द एग्जाम, मेक योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्गर। ओके? अब ये जो बात मैंने कही आपको कि x प्लस 1 इफ यू पुट इट इक्वल टू 0, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, एंड देन x इज इक्वल टू माइनस 1 इफ यू सब्स्टिट्यूट हियर एंड चेक इफ इट इज 0 और नॉट। इफ इट इज नॉट 0, इट इज नॉट द फैक्टर। Also, whatever it gives you is the remainder. ठीक है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? ओके। नाउ समझो इस बात को। ये जो टिप है, ये जो ट्रिक है, ये जो हमने किया है, ये जो ट्रिक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तभी काम करेगा जब आपका डिवाइज़र व्हेन डिवाइज़र ये तभी काम करेगा व्हेन डिवाइज़र इज़ फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन। ओके? फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन और फर्स्ट ऑर्डर का पॉलिनोमियल होगा। ओके? डिवाइज़र हैज़ टू बी, अब इसको आप एज़ अ टिप लिख लो, ये टिप लिख लो इसको। That this remainder theorem to check the remainder when a polynomial divided by a divisor is going to work only when the divisor is first order expression। मतलब फर्स्ट ऑर्डर मतलब हमने डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में, राइट? यहाँ पे क्या था वो x प्लस 1, ये 1 के कारण फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, बिकॉज पावर ऑफ x इज 1, दैट्स व्हाई इट इज फर्स्ट ऑर्डर। सो इट इज गोइंग टू वर्क ओनली व्हेन द डिवाइजर इज फर्स्ट ऑर्डर। कभी-कभी सेकंड ऑर्डर में भी काम कर सकता है, बट उस वो मतलब वो इट इज़ बाय लक, बाय चांस। आप उसको प्रूव नहीं कर सकते। सो दिस रिमाइंडर थ्योरम इज़ गोइंग टू वर्क, दिस मेथड इज़ गोइंग टू वर्क व्हेन योर डिवाइज़र इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन। मतलब अगर वो सेकंड ऑर्डर का हुआ तो नहीं होगा। जैसे आपने अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 6, ऐसा अगर कुछ एक्सप्रेशन है, सो अगर ये आपको एज़ अ डिवाइज़र दे दिया गया, तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। पर वो सॉल्व कैसे करेंगे? मैं हूँ, डोंट वरी, आई एम देयर। सब करेंगे अपन, डोंट वरी, बिल्कुल पैनिक नहीं होने का। ओके? फिलहाल आप इसको समझो जो हमें समझना चाहिए, दैट ये डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी हैंकी-पैंकी, विदाउट डूइंग एनी मोर गेटिंग इनटू एनी मोर स्टेप्स व्हेन
द डिवाइजर इज फर्स्ट ऑर्डर। देखो मैं बार-बार बोल रहा हूँ, टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, मतलब आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस ताकि आपको ये ध्यान रहे। आगे चलते हैं, डोंट वरी, आगे चल रहे हैं हम लोग, आगे चलते हैं। एग्जांपल 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if the remainder when this expression is divided by this expression is going to be 128. So what is 128 here? Remainder. What is x minus a here? This is your divisor. You're going to divide by this, right? So this is going to be a divisor. अच्छा ये क्या है आपका? ये आपका है डिविडेंड। ओके, ये रिमाइंडर। सो कैन वी अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम हियर? यस। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं? डिवाइजर को इक्वल टू 0 वी गेट x का वैल्यू, राइट? दिस x का वैल्यू इफ यू सब्स्टिट्यूट हियर देन वी आर गोइंग टू गेट द रिमाइंडर। ये पिछले क्वेश्चन से कैसा डिफरेंट है? देखो इन लास्ट क्वेश्चन वी वर फाइंडिंग व्हाट इज द रिमाइंडर, वी वर लुकिंग फॉर द रिमाइंडर। इन दिस क्वेश्चन रिमाइंडर इज गिवन, तो यहाँ पे हमने क्या किया? सब्स्टिट्यूट करके चेक किया कि वैल्यू क्या आ रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हमें पता है कि लास्ट वैल्यू 128 आनी चाहिए। सो वी आर गोइंग टू मेक इट इक्वल टू 128। वी आर गोइंग टू राइट दिस इक्वल टू 128। ओके, ये आपका रिमाइंडर का एक्सप्रेशन, राइट? तो आप जब x इज इक्वल टू a इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करोगे, that should give you equal to 128। ये बात समझ में आई क्या? You can pause the video and understand this part again. Okay, so if you're with me, let's go ahead. Let's go ahead. So when you substitute x equal to a in this expression, तो कैसा दिखेगा expression? देखो ध्यान से। This will be like a plus a, x की प्लेस पे हमने a सब्स्टिट्यूट किया, into a स्क्वायर minus a into a plus a स्क्वायर, राइट? ये आपका क्या हुआ? ये आपका क्या हुआ? रिमाइंडर का एक्सप्रेशन। किसका एक्सप्रेशन हो गया ये? रिमाइंडर का एक्सप्रेशन, right? Okay, now as per the question, the remainder is equal to 128. So what are we going to do? We are going to make it equal to 128, right? So we'll say a plus a, which is nothing but 2a. अच्छा, यहाँ पे क्या है? This is a square, this is minus a square, plus a square is going to be equal to 128. So this is what I was trying to make you understand। ये मैं चिल्ला-चिल्ला के बार-बार बोल रहा था कि यार 128 इज रिमाइंडर है। मतलब आप अगर x इज इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट करोगे, व्हाई x इक्वल टू a? बिकॉज़ व्हेन यू मेक डिवाइजर इक्वल टू 0 यू गेट x इक्वल टू a, राइट? जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे डिविडेंड में, तो वो रिमाइंडर का एक्सप्रेशन बनेगा और वो रिमाइंडर का एक्सप्रेशन शुड गेट यू 128। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है बोलो? रिमाइंडर का एक्सप्रेशन का मतलब समझ में आया ना? ये अगर आपने ए सब्स्टिट्यूट किया तो जो आपको ये पूरा एक्सप्रेशन मिल रहा है, दिस इज नथिंग बट रिमाइंडर। हाँ, तो मैंने उसको रिमाइंडर का एक्सप्रेशन बोल दिया। चलेगा? चलेगा? ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लो। नाउ यू ऑल गाइस आर स्मार्ट इनफ टू सिंप्लीफाई दिस। आप तो ये खुद से कर लोगे। कैसे करोगे? 2a यहाँ पे क्या है? ये कैंसल हो गया, सो दिस इज इनटू a स्क्वायर। ये कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 128। आप 2 से कैंसल करोगे, तो ये a इंटू a स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? a क्यूब। a क्यूब कितना आ जाएगा? 2 से कैंसल करो इसको। दिस इज व्हाट? 64। सो दिस इज योर 64। इट मीन्स द a is going to be equal to क्यूब रूट निकाल लो। 64 is cube of what? Cube of 4। So a equal to 4। This is your आंसर। क्वेश्चन सेट फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमने a का वैल्यू निकाला है यहाँ पे। निकाला है? ठीक है? कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन? इजी है? इसको वापस से रिपीट करके देखना, आ जाएगा समझ में। See, we are going to discuss this remainder theorem later also, but only with numbers। तो वहां पे ये आपको बहुत हेल्प करेगा, तो इस चीज को समझो यार ध्यान से। क्या? समझो ध्यान से। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर, एग्जाम्पल नंबर 6। यहाँ पे हमारे पास है इफ x plus 3 is a common factor of this expression, x plus 3 is common factor of this expression as well as this expression। तो दो एक्सप्रेशन का कॉमन फैक्टर है, चले ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a plus t। कॉमन फैक्टर, तो अभी a कहाँ से मिलेगा आपको? यहाँ से। b कहाँ से मिलेगा आपको? दूसरे एक्सप्रेशन से। और ये कॉमन फैक्टर है, मतलब ये इस एक्सप्रेशन का भी फैक्टर है और दूसरे एक्सप्रेशन का भी फैक्टर है।
इसका मतलब ये हुआ कि इफ आई सब्स्टिट्यूट x plus 3 equal to 0, it's going to be 0 for x is equal to -3. If I substitute x is equal to -3, sorry, is it? If I substitute x is equal to -3 in this expression, it's going to be equal to 0. आपको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में डिफरेंस थोड़ा समझ में आना चाहिए। बहुत स्लाइट डिफरेंस है। फैक्टर थ्योरम में आपको दिया है या आपको फाइंड करना है कि फैक्टर। तो इफ द फैक्टर इज इक्वल टू 0, द पॉलिनोमियल इज आल्सो इक्वल टू 0। रिमाइंडर में क्या है? अगर आप अम, जो ये डिवाइज़र, फैक्टर जो भी हम लोग बोल रहे हैं, दिस स्मॉल एक्सप्रेशन इफ यू डिवाइज़र, ओके, डिवाइज़र इफ यू पुट इक्वल टू 0, वहाँ से जो x का वैल्यू आएगा, वो हम डिविडेंड में रखते हैं। वहाँ से जो डिविडेंड का एक्सप्रेशन बनता है, वो रिमाइंडर का एक्सप्रेशन होता है, तो वहाँ से रिमाइंडर निकलता है। इतना ही डिफरेंस है देखो। यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर हो जाता है और फैक्टर थ्योरम में ये रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो जाता है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस। बात आ रही है समझ में? बात आ रही है समझ में? यस? तो चलो सॉल्व करें। अब आपको दिया हुआ है कि ये फैक्टर है, इट्स गिवन टू यू। मैंने गिवन का जी, ग और दिया का ये दोनों मिला दे, गिया हुआ बोल दिया। ओके, ठीक है। ओके, वीडियो हो गया, चलो। यस, सो ये फैक्टर है। ओके, सो x प्लस 3 फैक्टर है, गिवन है फैक्टर है। इसका मतलब फॉर x इज इक्वल टू -3, इवन दिस एक्सप्रेशन शुड गिव यू इक्वल टू 0। करेक्ट? सो सब्स्टिट्यूट करो। ये पहला एक्सप्रेशन, चलो ये पहले एक्सप्रेशन को हम लोग ब्लू कलर से सॉल्व करते हैं और दूसरे को ग्रीन कलर से करेंगे। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट। आप 1 और 2 भी लिख सकते हो। तो पहला एक्सप्रेशन कैसा बन रहा है? x इज इक्वल टू -3 सब्स्टिट्यूट करके, दिस इज -3 क्यूब प्लस a इंटू -3 स्क्वायर -7 -3 -6। अच्छा, ये तो आपको सभी को पता होगा कि negatives power even is positive and negatives power odd is negative। ये पता है सबको? हुँ? अच्छा, बता दूँ क्या फिर से? चलो बता देता हूँ। ध्यान रखना ये। नेगेटिव का पावर अगर ऑड है, तो आउटकम भी नेगेटिव साइन के साथ ही होगा। सेम नंबर नहीं होगा। पावर लगाए तो कुछ तो चेंज होगा ना, अनटिल अनलेस द पावर इज़ 1। और अगर पॉजिटिव का पावर कुछ भी, डज़न्ट मैटर, ये तो पॉजिटिव ही होने वाला है। ठीक है? नेगेटिव का पावर अगर इवन है, तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। आप इसको नोट बना के लिख सकते हो। आप तो बड़े स्मार्ट हो, एंड आई एम श्योर आप लोग ये सारे लेक्चर्स पेन, पेपर, नोटबुक लेके देख रहे हो। I hope you're watching these lectures, you having pen and paper with you. Without having your own handwritten notes, guys, you're not going to win the race. Please make sure that you have your own handwritten notes. Please make sure that. आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है? आगे हमारे पास क्या सॉल्व करना है और क्या? ये आपका एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। तो दिस इज -3 क्यूब इज व्हाट? माइनस ऑड है ना पावर, 27। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 9। दिस इज व्हाट? माइनस इन माइनस प्लस 21 -6। नाउ इट्स गिवन टू अस दैट x प्लस 3 इज फैक्टर, तो इसलिए मैं इसको इक्वल टू 0 लगा देता हूँ। राइट? गिवन है कि फैक्टर है तो ये इक्वल टू रिमाइंडर इक्वल टू 0। ये रिमाइंडर का एक्सप्रेशन है ना, रिमाइंडर इक्वल टू 0 होना ही है। ठीक है? ओके, सिंप्लीफाई कर दो। आप लोग सिंप्लीफाई करो। ये कितना हो जाएगा? -6 एंड दिस इज व्हाट? -33 एंड 21, तो ये 12 आ जाएगा। सो 9a और नेगेटिव का 12 बचेगा, ये इक्वल टू 0। सो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12/9। और सिंप्लीफाई कर लो, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/3। राइट? सिमिलरली नाउ इफ यू सॉल्व द सेकंड एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। चलो सेकंड एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। अगेन it's a common factor, so same thing is applicable for the second expression as well, that for x equal to -3, this should also give you remainder equal to 0। Yeah, it's a factor, right? So substitute करो, -3 क्यूब प्लस
4 into minus 3 square plus b into minus 3 and minus 6. Simplify करो. This should be equal to 0. That's how you're going to get the value of b. So minus 3 फिर से आ जाएगा minus 27. This is minus 3 square even power. It's going to be what? Plus. तो ये हो जाएगा कितना? 9 4s are 36. And this is your minus pb. माइनस 6 इक्वल टू 0. सॉल्व कर लो यार, इसको सॉल्व कर लो, क्या बन रहा है देख लो. ये आपका माइनस 6 है और ये हो जाएगा आपका माइनस 6 एंड माइनस 27, ये माइनस 33 हो रहा है यहाँ पे. माइनस 33 और प्लस 36 बन रहा है प्लस का 3. माइनस 3b इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई कर लो, b उधर लेके जाओ. सो 3b इक्वल टू 3. सो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1. कहानी खत्म हुई? नहीं हुई. यू गॉट ओनली वैल्यू ऑफ ए एंड बी. मतलब समझ में तो हमें आ रहा है, बट यार हमेशा क्वेश्चन को देखना कि आपसे पूछा क्या गया है, लास्ट तक देखना. यहाँ पे क्या है, a प्लस बी पूछा है ना, तो a प्लस बी फाइंड करो. सो व्हाट इज गोइंग टू बी a प्लस बी इन दिस केस? व्हाट इज गोइंग टू बी a प्लस, इतना गंदा लिखा है, फिर से लिखता हूँ. व्हाट इज गोइंग टू बी a प्लस बी इन दिस केस? a plus b is going to be 4 by 3 which is a and 1 which is b. Simplify further. आपको 4 by 3 plus 1 ऐड करना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई है. 3 into 1, 1 4 जा, 3 1 जा, कितना हो जाएगा? दिस विल बी 7 by 3. क्या ये आपका आंसर है? क्या ये आपका आंसर है? आप बोलोगे हाँ ये हमारा आंसर है, दिस इज द आंसर. ऑलराइट. ओके, यही लास्ट एग्जांपल था. आई होप यू आर क्लियर विथ रिमाइंडर थ्योरम, यू आर क्लियर विथ द फैक्टर थ्योरम. दोनों सेम ही है, बहुत कोई डिफरेंस है नहीं. इसको फिर से गो थ्रू करना. आई प्रॉमिस यू, यू विल अंडरस्टैंड फॉर श्योर. ओके, नेक्स्ट टाइम जब देखते हो तो 2x पे देख लो, 1.5x स्पीड पे देख लो, जल्दी से रिवीजन हो जाएगा. राइट? हैव पेन पेपर, प्लीज मेक नोट्स, प्लीज मेक यू नो अंडरलाइन और मेक बॉर्डर और अच्छा सा बॉक्स बना के स्टार मार्क करके टिप्स को एक्स्ट्रा स्पेशल अपने को अटेंशन देना है. दैट्स गोइंग टू हेल्प यू बिफोर द एग्जाम. लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा. ओके, सो दिस इज इट इन टुडेस लेक्चर. माय नेम इज Shyam Manawat signing off. I will see you in the next lecture. Till then, stay happy, stay healthy, and keep learning. Bye bye.